हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम डिस्कस करेंगे एचपी टैट का मेडिकल का क्वेश्चन पेपर। हम डिस्कस करेंगे एचपी टैट का मेडिकल का क्वेश्चन पेपर। फुल पेपर जो है हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट सेक्शन, दैट इज चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट। राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, what stage is profoundly different from others in characters of its scheme? So option number 1 is the correct answer, that is sensory motor stage. Question number 2 is, what is the central outcome of sensory motor intelligence? So correct answer of option number 2 is option number A, that is construction of knowledge of reality. Question number 3 is, definition of abnormality which include unhappiness contain dash aspect. So that contains distress aspect. Next is question 4. What the aspect of child development has evolved according to the John Bowlby? So correct option of this question is option number A, the emotional bond between the infant and caregiver. Question number 5th is, which of the following was most closely associated with the structuralist school of psychology? So correct answer is option number A, that is the Tishner. अगला क्वेश्चन है, वॉटसन एंड स्किनर बोथ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी? सो दे बोथ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द बिहेवियरिज्म. ऑप्शन नंबर डी. Question number 7 is, which field of psychology would be the most likely to study the influence of overcrowding on conformity? So correct option is option number D, that is social. 8th question है, in an experiment the group which receive no treatment is called control group. राइट. रिसर्च में आप कभी भी जाओ तो जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सपोज आप किसी पर्टिकुलर अगर माइस पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, राइट, तो उसको आप अपने एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दोगे. कुछ माइस को आप ट्रीटमेंट दोगे, राइट, सिंगल ड्रग का. कुछ को आप ड्रग का दोगे प्लस आप उनको कुछ क्योर के लिए भी कोई प्लांट एक्सट्रैक्ट ऐसा कुछ दे दोगे. कुछ आप एनिमल्स को रखोगे कंट्रोल ग्रुप में. कंट्रोल ग्रुप मीन्स उनको आप कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दोगे और जब भी आप उनको कंपेयर करोगे तो नॉर्मल के लिए भी कुछ कंपेयर करने के लिए होना चाहिए ना, कि नॉर्मल में आपने कोई चेंजेस देखे नहीं, राइट. जिनको आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, क्योर दे रहे हो, उनमें आपने क्या चेंजेस देखे एज कंपेयर टू द कंट्रोल ग्रुप, right? So that is the control group. In an experiment, the group which receives no treatment, that is control group. Question number 9th is, what are the two major factors that contribute to individual differences? So question number 9 का correct answer है, that is the option number A, genetics and environment. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, विच थ्योरी सजेस्ट दैट इंडिविजुअल के जो डिफरेंसेस हैं दे आर प्राइमरली डिटर्मिन्ड बाय द जेनेटिक फैक्टर्स. सो ये कौन बताता है? दैट इज द हेरिडिटरी थ्योरी. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनहेरिटेड ट्रेड? सो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, हाइट, राइट. तो इनहेरिटेड ट्रेड मीन्स जो जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं. ये जो लैंग्वेज स्किल्स हैं या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, एजुकेशन लेवल है, ये एक्वायर्ड ट्रेड्स हैं. एक्वायर्ड मीन्स इनको अपनी लाइफ में कोई भी इंडिविजुअल एक्वायर करता है. बट जो हाइट है दैट इज एन इनहेरिटेड ट्रेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल डिफरेंसेस? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है A, it determines all aspects of an individual's behavior. Next question is, what is the term for unique pattern of thoughts, feelings and behavior that make up an individual's personality? So that is option D, that is trait. 14th question है,
Which factor refers to an individual's ability to acquire and apply knowledge? So that is the option number B, that is intelligence. अगला क्वेश्चन है which of the following is a measure of intelligence often used in psychological assessment? So that is the option number B, IQ, intelligent quotient. अगला क्वेश्चन है another term for reinforcement is, which is the another term, that is option number B, reward. अगला क्वेश्चन है the two most important characteristics of any psychological test are validity and second is the reliability. अगला क्वेश्चन है formula to calculate the IQ is option number A. Question number 19th is people lost touch with reality when, option B, when they are psychotic. Next question is which term refers to the transmission of genetic information from parents to offspring? So कौन सा है? That is hereditary. Heredity means transmission of characters from parents to the offsprings. अगला क्वेश्चन है environmental factors can influence the expression of certain genes. This phenomena is known as mutation. ठीक है ना, जैसे एक्सरेज हैं या कुछ भी और environmental factors हैं तो उसकी वजह से एक्सप्रेशन ऑफ कुछ एक जीन्स का जो है इन्फ्लुएंस होता है, इसे कहते हैं म्यूटेशन. चेंजेस आ जाते हैं जीन्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेरिडिटरी ट्रेड? सो दैट इज कलर ऑफ आइज. कलर ऑफ आइज जो है वो ट्रांसमिट होता है, जैसे ब्लूइश आइज हैं, ब्राउनिश हैं. जो ये बाकी करेक्टर्स हैं ये सारे आपका क्या है, जनरेशन टू जनरेशन जो है इनका ट्रांसमिशन नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वायर्ड ट्रेड? सो दैट इज द सनटेन. देखिए दो तरह के ट्रेड होते हैं, एक एक्वायर्ड एंड दूसरा होगा इनहेरिटेड, राइट. सो एक्वायर्ड ट्रेड कौन सा होगा? जिन करेक्टर्स को हम अपनी लाइफ में एक्वायर करेंगे, ठीक है, वो हमारे पेरेंट्स में नहीं थे, हमारे बच्चों में नहीं आएंगे, जस्ट उनको हम अपनी लाइफ में एक्वायर करेंगे. एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स वो ट्रेड्स होंगे जो जनरेशन टू जनरेशन पास होंगे. तो सन टैन जो है दैट इज़ अ एक्वायर्ड ट्रेड. आई कलर, ब्लड टाइप, हाइट जो है जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट हो सकता है, बट सन टैन जो है दैट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड. Question number 24th is the study of how genes and environment interact to influence the trait is called option number D, that is gene environment interaction. Question number 25th is what is the main source of genetic variation in a population? So genetic variation कैसे आती हैं? By mutation. Next is the field of study that investigate the influence of environmental factors on gene expression is known as environmental genetics. Option number C. Next is which of the following is an example of a shared environment influence? So that is the option number A, cultural upbringing. Question 28th is which control breathing and digestion the portion of body is known as autonomic, right. ये आपका नर्वस सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है. सो आंसर विल बी द ऑटोनॉमिक अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस. अगला क्वेश्चन है इन पार्ट ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल प्रोसीजर्स आर बेस्ड? सो दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन. अगला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ कंडीशनिंग डिड वॉटसन एक्सपेरिमेंट विद? सो दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, क्लासिकल कंडीशनिंग. नेक्स्ट जो है दैट इज़ द जनरल अवेयरनेस सेक्शन. सो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम व्हेन टू व्हेन द हिमाचल प्रदेश बिकम अ यूनियन टेरिटरी? तो हिमाचल प्रदेश जो है वो यूनियन टेरिटरी आपका 56 में बना था और 71 तक, जब तक कि उसको पूर्ण स्वराज्य का दर्जा नहीं मिल गया 71 में, तब तक वो एज अ यूनियन टेरिटरी रहा था. तो ये क्वेश्चन जो है वो स्क्रैप हो जाएगा बिकॉज 4 में से किसी भी ऑप्शन में ये ऑप्शन दिया नहीं है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? सो दैट इज द ऑप्शन नंबर डी, एस चक्रवर्ती। अगला क्वेश्चन है हु एस्टैब्लिश द हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट? जो है वो स्क्रैप हो जाएगा बिकॉज 4 में से किसी भी ऑप्शन में ये ऑप्शन दिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? सो दैट इज द ऑप्शन नंबर डी, एस चक्रवर्ती। अगला क्वेश्चन है हु एस्टैब्लिश द हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट? सो दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, दैट इज संसार चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who established the Hamirpur district? Option number B, that is the Hamir Chand. Next is who built the Victoria Bridge on Vyas River? तो किसने बनाया था? That is राजा विजय सिंह। Option number D is the correct answer. Next is in which year the principle of no work no pay was accepted in Himachal Pradesh? ठीक है ना, तो ये कब किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, इन 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 इज व्हेन वाज विशाल हिमाचल एस्टैब्लिश? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, इन 1 नवंबर 1966। नेक्स्ट इज द हाइट ऑफ जो हिमाचल प्रदेश की रेंजेस है फ्रॉम हाउ मैनी मीटर्स टू हाउ मैनी मीटर्स फ्रॉम द सी लेवल? कहाँ से कहाँ तक है? लोवेस्ट है 350 टू 7026 मीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिल्ड द फेमस टेम्पल ऑफ बिलकवेश्वर महादेव इन नदौन? सो किसने बनाया था ये? ऑप्शन नंबर बी, दैट आर द पांडवास। अगला क्वेश्चन है शिवोन थान टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? सो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा देखने को? कांगड़ा में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड द ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी टेक्स प्लेस बिटवीन राजा संसार चंद एंड महाराजा रणजीत सिंह? सो ये जो ट्रीटी थी वो कब की गई थी? ज्वालामुखी संधि हुई थी 1809 में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द लास्ट मुगल जो किलेदार था कांगड़ा फोर्ट का, वो कौन था? दैट इज द नवाब सैफ अली खां। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हेन वेयर द फर्स्ट इलेक्शन टू द पंचायत हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इन 1968। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड द धामी फायरिंग इंसिडेंट हैपन? सो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, काफ़ी डिफरेंट एग्जाम में। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इन 1939। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड हिमाचल प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्पोज सेल टैक्स इन द फर्स्ट फेज? सो ये ऑप्शन जो है 63 हो सकता है, ऑप्शन डी, बट आई एम नॉट श्योर। सो इसको जब तक आंसर की नहीं आती है तब तक पेंडिंग रखते हैं, आंसर की में एग्जैक्ट आंसर इसका पता चल पाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट हिमाचली टू फाइंड अ प्लेस इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड? सो कौन थे सबसे पहले? सो इट इज़ द डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 46, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई बाय एरोप्लेन? सो आई थिंक ये सभी को पता होगा कि राइट ब्रदर्स थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है इसके बारे में सोचा था। नेक्स्ट इज द विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस द नेशनल एंथम? तो फर्स्ट कंट्री कौन सी थी? इट वॉज अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री वॉन द फर्स्ट वर्ल्ड कप फुटबॉल? सबसे पहला किसने जीता है? सो दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, उरुग्वे। अगला है हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड?
वर्ड की पूछी है, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ मारिया एस्टेला पेरॉन। अगर इंडिया की बात करें तो कौन थी फर्स्ट, इट वॉज प्रतिभा सिंह पाटिल। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, सो दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सुंदरबन डेल्टा। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री टचेस द बॉर्डर ऑफ मोस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा बॉर्डर कौन सी कंट्रीज टच करती हैं, ऑब्वियसली ये सबसे बड़ी हैं चाइना एंड द रशिया। क्वेश्चन नंबर 52 इज इन विच ईयर मदर टेरेसा वॉज अवॉर्डेड बाय द नोबल पीस प्राइज। तो उनको नोबल पीस प्राइज कब मिला था, ऑप्शन नंबर बी 1979 में। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल 3 डेकेड्स ऑफ पार्लियामेंट। सो इस बुक के जो ऑथर थे वो हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज़ द कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड, सो इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर। सभी में ऑप्शन है बट ईयर चेंज है, सो इट जो है फर्स्ट सेलिब्रेट किया गया था इन 2001। क्वेश्चन नंबर 55 इज हु लेड द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड, सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1890। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट्स इन इंडिया, सो इट स्टार्ट्स इन ऑप्शन नंबर ए 1835। अगला क्वेश्चन है हु कॉल्ड शिवाजी अ हिल रैट। ठीक है ना, सो किसने कहा था पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू, सो इट वॉज कॉल्ड बाय औरंगजेब, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर टू वेयर डिड द वर्ड इज फर्स्ट रेलवे लाइन रन। पहली जो रेलवे लाइन थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज स्टॉकन टू द डार्लिंगटन। लास्ट क्वेश्चन इन जीके पोर्शन इज विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड एरिया, सो इट इज द ऑप्शन डी, वेटिकन सिटी। नेक्स्ट आएगा बॉटनी एंड द जूलॉजी सेक्शन। बॉटनी एंड जूलॉजी सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम दैट कैटालाइजेस द लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपोनेंट्स, राइट। सो जो लिंक करेगा दो कंपोनेंट्स को दैट इज नोन एज लाइगेजेस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर्स ड्यूरिंग, बहुत कॉमन और इजी क्वेश्चन है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कब होता है, ड्यूरिंग द एस फेज, ठीक है। नेक्स्ट इज साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस 1। तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, ऑप्शन सी, जाइगोटिन में। लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैक्टिन एंड डिप्लोटिन एंड देन इज द डाइकाइनेसिस। पैक्टिन में कौन सा एक इंपॉर्टेंट इवेंट रहता है, दैट इज द क्रॉसिंग ओवर। और जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है जो लेडर लाइक जो शेप बनेगा, सो दैट इज इन द जाइगोटिन स्टेज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64th इज विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और अबंडेंट पिगमेंट इन द वर्ल्ड। सो सबसे ज़्यादा जो पिगमेंट देखने को मिलता है दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्लोरोफिल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट CO2 कंपाउंड fixation product formed in Calvin cycle is the option number B, that is PGA, phosphoglyceric acid. Next question है the breakdown of glucose to the pyruvic acid is known as glycolysis, right. One molecule of glucose जो है that get broken down into the two molecules of pyruvic acid. अगला क्वेश्चन है RQ, that is respiratory quiescent when fats are used in respiration, it is option number A, that is less than 1. अगला क्वेश्चन है which hormone promotes the petiole elongation in deep water in the rice plant। तो करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन नंबर बी,
इथाइलिन। अगला क्वेश्चन है द innermost wall layer of microsporangium is known as the tapetum. Option number C is the correct answer. Next question is the presence of starch in leaves indicate the occurrence of option number B, that is photosynthesis. Means कि photosynthesis हो रही है और जो starch है वो बन रहा है. Next question number 71 is which part of the plant takes in CO2 from the air for photosynthesis? So that is the stomata. Question number 72 है World Water Day is celebrated option number A, that is the 25th of April. अगला क्वेश्चन है how much area is under the forest cover in India? So it is 21%. अगला क्वेश्चन है leaves of which plants are used for storing the food grains at home? So नीम यूज करते हैं so that कि वो कीड़ा ना लगे, है ना. Next is citrus canker disease is caused by, it is caused by the bacteria. Option number A, that is the collenchyma. इसकी वजह से जो है प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी आती है. स्क्लेरेनकाइमेटा की वजह से तो है वो हार्ड हो जाता है, रिजिड हो जाता है, राइट. Next question is the husk of coconut. The husk of coconut is made up of option number B, that is the sclerenchymatous tissue. Question number 79 is which of the following is a rabi crop? Option number B, that is linseed. It is a rabi crop. Next question is the wilting of leaves is caused by which hormone? It is caused by option number A, that is abscisic acid. अगला क्वेश्चन है plant with green and tender stem is known as the herbs. ठीक है, जिनकी जितनी delicate green stem रहेंगी they are known as the herbs, right? Next question is which plant has buds in the margins of its leaves? तो किस में रहते हैं? That is the bryophyllum, right? Bryophyllum की अगर लीव देखेंगे ना तो ऐसे दिखेगी और यहाँ पे ना इसके बर्ड्स रहते हैं इन कॉर्नर्स पे. सो ये आपका जो है प्रोपगेशन के लिए भी यूज होती है. इसमें लीव के थ्रू ही प्रोपगेशन होती है इन द ब्रायोफाइलम, राइट. सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज इन कुकुम्बर. यहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल वॉल ऑफ डायटम्स इज एम्बेडेड विद द सिलिका. ठीक है, एक वो सोप बॉक्स टाइप शेप जो है बनाता है, जैसे कि एक सोप बॉक्स रहता है एंड दैट इज मेड अप ऑफ सिलिका. क्लियर. नेक्स्ट इज डाइकैरियन मीन्स. ठीक है, इसको आप नाम से भी पता लगा सकते हैं. डाई मीन्स टू, कैरियो मीन्स न्यूक्लियाई. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा इसका दैट इज 2 न्यूक्लियाई पर सेल, दैट इज नोन एज द डाइकैरियन. अगला क्वेश्चन है द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट इज ऑप्शन नंबर ए, गैमेटोफाइट. अगला क्वेश्चन है माइकोराइजा इज प्रेजेंट इन पाइनस. इसमें आपको देखने को मिलेगी एक्टोमाइकोराइजा. अगला क्वेश्चन है द साइट ऑफ आरआरएनए सिंथेसिस इज न्यूक्लियोलस. इसके अंदर बनता है आरआरएनए. जितने ज़्यादा एक न्यूक्लियस के अंदर कई बार 2 से 3 न्यूक्लियोलस भी होते हैं, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस होगा उतनी ज़्यादा जो है वो आरआरएनए सिंथेसिस किसी भी सेल के अंदर होगा. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द प्रोटीन्स? सो प्रोटीन्स में कितने अमीनो एसिड्स देखने को मिलते हैं? 20. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ ज्वीटर आयन? ज्वीटर आयन क्या होते हैं? ऐसे आयन्स जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट हो, दे आर नोन एज द ज्वीटर आयन्स. सो
अगर हम ऑप्शन में देखें तो कहाँ हमको जो है ऐसे देखने को मिल रहे हैं। अगर आप ऑप्शन ए देखो तो यहाँ सिर्फ पॉजिटिव चार्ज हमें देखने को मिल रहा है, राइट। अगर हम सेकंड ऑप्शन देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन 3 में सिर्फ नेगेटिव चार्ज है और ऑप्शन डी में कोई भी चार्ज नहीं है। तो ज्विटर आयन कौन से आयन्स होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट होंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिप्लॉयड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए हैज द बेस पेयर। कितना है हिप्लॉयड का पूछा है, रिमेंबर दिस। सो दैट इज 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स। इतना जो है हिप्लॉयड कंटेंट है ह्यूमन डीएनए का। अगला क्वेश्चन है हु प्रपोज्ड सेंट्रल डोगमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो सेंट्रल डोगमा जो है दैट वाज प्रपोज्ड बाय द फ्रांसिस क्रिक। Central dogma is what? That is unidirectional flow of information. Right. अगला क्वेश्चन है the codon which has dual function. That is the option number B, AUG. Next is human genome. Next question is the anaerobic breakdown of pyruvate in human muscle produces the lactic acid. जिसकी वजह से फिर हमको जो है वो पेन होता है लेग्स में लैक्टिक एसिड की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। सो इट वाज कॉइंड बाय ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पुरकेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिगामेंट कनेक्ट्स। करेक्ट ऑप्शन इज कि जो लिगामेंट है वो किसको किससे कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट्स बोन टू बोन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसको हमने टेंडन के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। एक लिगामेंट आती है टर्म, सेकंड वन इज द टेंडन। जो टेंडन है दैट ज्वाइन मसल टू बोन एंड लिगामेंट ज्वाइन बोन टू बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द वायरसेस। जो एंटीबायोटिक्स हैं वो वायरसेस के अगेंस्ट कभी भी इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं। तभी जब भी हमको कोल्ड या जैसे सपोज़ हमें कोल्ड है, राइट, तो उसका रीज़न जो है बैक्टीरियल है या फिर वायरल है, उसके बेसिस पे डॉक्टर जो है हमें मेडिसिन देते हैं। तो अगर इन केस वो फ्लू वायरल है तो कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करती है, आप लो या ना लो, वो खाली एक तसल्ली है। बिकॉज नॉर्मली वो क्या है 3-4 डेज में अपने आप भी ठीक हो जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। सो कैंसर इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। ट्यूबरक्लोसिस भी है, कॉलरा भी है एंड चिकन पॉक्स इज ऑल्सो, राइट। ये सारी दो बैक्टीरियल हैं एंड ये वायरल डिजीज है, ठीक है। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द एलर्जी इन ह्यूमन बॉडी इज IgE। एलर्जी के अगेंस्ट ये काम करेगी। जैसे आपका सलाइवा जो है, ठीक है ना, उसमें आपका ये प्रेजेंट रहता है, मदर मिल्क में प्रेजेंट रहता है। IgG जो है वो स्मॉलेस्ट है, ठीक है, प्लेसेंटा में से भी क्रॉस कर सकता है। नेक्स्ट है ब्यूटेरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑप्शन ए, दैट इज क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजीज सिरोसिस डैमेजेस द लिवर, राइट। जैसे सबसे पहले इसमें क्या होता है ना, फैटी लीवर होगा, फैटी लीवर ग्रेड 1, फैटी लीवर ग्रेड 2, 3, और जब फाइनली और ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन आ जाएगी सो दैट लीड्स टू द लिवर सिरोसिस। अगला क्वेश्चन है द बुक गेट ऑफ एनिमल इज रिटन बाय, किसने लिखी थी, ऑप्शन सी, दैट इज द एरिस्टोटल। अगला क्वेश्चन है द कॉजेटिव एजेंट ऑफ हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए का कॉजेटिव एजेंट जो है दैट इज अ वायरस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सी एनिमल डू नॉट हैव गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। आई होप ऑल नो दिस आंसर, दैट इज द व्हेल, क्योंकि वो एक मैमल है। नेक्स्ट इज बाइल जूल्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स किसके थ्रू होता है, बाय द बाइल जूस। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट द सेलुलोज बिकॉज वी डू नॉट हैव द एंजाइम सेलुलेज। अगला क्वेश्चन है रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स अकर्स बाय द ट्रैकिया। कॉकरोच के केस में अगर आप देखोगे तो रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा, बाय द ट्रैकिया। नेक्स्ट इज इंडियन जाइंट स्क्वायरल इज
जो है fauna of which place, कहाँ पे मिलती है ये? So it is mainly found in the Panchmadi Biosphere Reserve. Next is in human, each testis has 250 compartments. They are known as the testicular lobules. Next is corpus luteum. क्या secrete करता है? Progesterone. Right? Corpus luteum is what? जब जो है एग रिलीज हो जाता है एज ए सेकेंडरी oocyte, जो रिमेनिंग पोर्शन है दैट इज नोन एज द corpus luteum and that secretes the progesterone. Next is which hormone causes strong uterine contraction during the parturition? That is oxytocin, also known as by the name birth hormone. इसी को कहते हैं birth hormone भी, right? Next question is the family planning program was initiated in the year in 1951. Reproductive and Child Health Care के नाम से आया था RCH. ठीक है 1951 में. Next question is Central Drug Research Institute is situated in लखनऊ CDRI. ठीक है लखनऊ, जिसने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है ना सहेली, वो भी बनाई है. ठीक है. Next question is which of the following is copper released intrauterine device? तो copper releasing कौन सी है? Multilode 375. Copper T जो है that is also copper releasing and multilode 375 भी. ठीक है. Next question is how many chromosomes are present in the female honey bee? So female honey bee में 32 chromosomes देखने को मिलेंगे. Option C is the correct answer. Next is which of the following is an autosome linked recessive trait? ध्यान से पढ़ना है, ऑटोजोम पूछा है. ठीक है ये सारी रिसेसिव ही हैं. ठीक है ना. जो हीमोफीलिया है वो सेक्स लिंक्ड है, कलर ब्लाइंडनेस भी सेक्स लिंक्ड है, जो डाउन सिंड्रोम है ये रिसेसिव नहीं है, सिकल सेल एनीमिया जो है दैट इज द ऑटोजोमल एंड रिसेसिव डिजीज. सो ये थे बायोलॉजी के क्वेश्चन. नेक्स्ट जो पोर्शन है लास्ट दैट इज द केमिस्ट्री. सो केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस देखेंगे. सो फर्स्ट इज विच इज द लिस्ट पोल्यूटेड फ्यूल? लिस्ट पोल्यूटेड फ्यूल कौन सा है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी CNG. तभी आजकल जो है CNG वाली गाड़ियाँ जो है यूज़ करने के लिए कहते हैं बिकॉज दैट इज़ द लीस्ट पोल्यूटेड. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल लाइक पेट्रोल एंड डीजल? सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा. इनकम्प्लीट कंबशन पूछा है सो दैट ऑप्शन विल बी द कार्बन मोनोऑक्साइड. अगर कंप्लीट कंबशन होता सो फिर कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. कभी भी हम किसी भी फ्यूल को जलाते हैं तो इनकम्प्लीट कंबशन से जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनती है. Next question is refrigerator, air conditioner and aerosol sprays have the pollutant CFC, that is chlorofluorocarbon. Which gas has the ability to decrease intake of oxygen in the blood? So that is again the option carbon monoxide. कार्बन मोनोऑक्साइड की 200 टाइम्स ज़्यादा कैपेसिटी होती है टू कंबाइंड विद द हीमोग्लोबिन एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन. अगर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में एंटर कर जाए तो पर्सन में डाई. Which of the following deficiency in food causes night blindness disease? So it is caused by the option number C, that is vitamin A. Vitamin A is also known as by the name retinol. Question number 126 is the number of atoms present in FCC unit cell is option number C, that is the 4. Next question is what is 4R principle? So that is reduce, reuse, recycle and recover. Question number 128 is the reaction of sodium with water is very fast. अगला क्वेश्चन है which metal do not react with air, water and acid? So that is platinum. Platinum हो गया, gold हो गया, ये जो आपकी gases हैं they do not react with the air, water and acids. अगला क्वेश्चन है which of the following is a flammable substance?
सो गैसोलीन पता है आपको फ्लेमेबल है, मीथेन है, दो है तो फिर तीसरा भी होगा ही, है ना। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। सो प्योर वाटर जो है दैट एक्ट एज द इंसुलेटर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज टू प्यूरिफाई द वाटर। ब्लीचिंग पाउडर आपको पता है यूज करते हैं, क्लोरीन आपको पता है, ठीक है ना, ओजोन भी यूज करते हैं। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंबल टू टंगस्टन एलिमेंट इज ऑप्शन ए डब्ल्यू। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ गैसेस आर यूज्ड इन वेल्डिंग ऑफ मेटल्स। सो दैट इज द ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्मोप्लास्टिक। सो नायलॉन भी आएगा, पॉलीथीन भी इसमें ऑप्शन है। सो इसमें ग्रेस मार्क्स जो है मिल जाएगा, ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे मोर देन वन। नेक्स्ट है रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल पूछा है तो ऑप्शन विल बी ए एयर। अगला क्वेश्चन है व्हाट विच प्रोडक्ट इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोल। सो कोल से हमें क्या नहीं मिलेगा, ऑप्शन बी दैट इज द पेट्रोलियम। कोल अलग है, पेट्रोलियम अलग है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट इग्निशन टेम्परेचर। तो किसका होता है, गैसोलीन का, वो जल्दी आग पकड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं उसकी। विच कंपाउंड चेंजेस रेड लिटमस इनटू द ब्लू। तो कौन से कंपाउंड से जो चेंज कर देते हैं, दीज आर द मेटालिक ऑक्साइड्स। मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं दे टर्न द रेड लिटमस इनटू द ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर। तो कौन सी नॉन मेटल है वो, दैट इज द ब्रोमीन। स्पिनरिट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द फाइबर्स। अगला क्वेश्चन है विच इज अ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कौन सा है, पेपर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 144 इज डार्क जोन ऑफ कैंडल फ्लेम इज इनर जोन। अंदर वाली जोन जो है वो सबसे डार्क होती है। नेक्स्ट इज व्हाट नेम इज गिवन टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, दैट इज नोन एज द ग्लोबल वार्मिंग। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इज ऑप्शन सी दैट इज द ऑक्सीजन। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एलिमेंट पूछा है, गैस नहीं, राइट। नेक्स्ट इज द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द, किसके इक्वल होता है एटॉमिक मास, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज with the increase of pressure the boiling point of water also increases. Next is artificial silk is made up of, option D is the correct answer, that is the cellulose. Normally जो silk है वो प्रोटीन से बनता है, फाइब्रोइन से, but artificial silk जो है that is made from the cellulose. Last question of this question paper is which of the following component is also called as black gold. So petroleum is known as by the name black gold. So that is all about this paper. I hope it will be helpful for you. So thanks for watching.